میری ساس بہت ہی کھلے خیالات کی خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ میں اپنے سسرال گیا تو جیسے ہی میں ان کے سامنے پہنچا، ساس نے مجھے بڑے تپاق سے گلے لگا لیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری ساس اتنی پرکشش اور اتنی جوان ہوں گی۔ جو ہی انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، ان کے بھرپور وجود کے لمس نے میرے پورے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ میں فوراً ایک طرف بیٹھ گیا کیونکہ میرے لیے اس صورتحال کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کہیں انہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے اندر کیسا طوفان برپا ہے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میری ساس بولی، بیٹا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی آزاد خیال ہوں گی۔ انہوں نے مجھے اپنے بالکل قریب بٹھایا اور اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے میری اہلیہ سحر کمرے میں آئی اور وہ بھی پاس ہی بیٹھ گئی۔ کمرے میں کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ پہلے بھی ماں بیٹی اکثر اس طرح کی باتیں اور کام کر چکی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان بہت گہری ذہنی ہم آہنگی تھی۔ میں نے سحر سے دبی آواز میں کہا کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سحر بولی، کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ تم یہیں بیٹھو اور امی سے باتیں کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میرے سسر تو دبئی میں رہتے تھے۔ گھر میں پہلے صرف ماں بیٹی ہی رہتی تھی۔ اب سحر میری منکوہا تھی اور ہم پہلی بار سسرال آئے تھے۔ سحر چائے بنانے چلی گئی تو ساس نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کا داماد ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی ساس بولی، ارے بیٹا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، آج کے دور میں یہ سب چلتا ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سحر کو اگر پتہ کی چل جائے تو وہ کچھ نہیں کہے گی۔ پھر فوراً انہوں نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ میں پیچھے ہٹا تو بولی، دور کیوں ہو رہے ہو؟ تم نہیں جانتے سحر اور میرے درمیان کتنی گہری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ شادی سے پہلے بھی ہم اکثر ایک ہی بستر پر سوتی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتی تھیں۔ سحر کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جو بھی ہے ڈرو مت، سحر آ جائے تو اس سے پوچھ لینا۔ میں بہت گھبرا چکا تھا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ آیا تھا۔ سہاگ رات میں تو سحر اور میرے درمیان بہت باتیں ہوئی تھیں، مگر اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ ساس واقعی بہت جوان اور پرکشش تھیں۔ ان کا نکھرا ہوا سراپا دیکھ کر میں خود بھی حواس کھو رہا تھا۔ میں زیادہ دیر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ ساس نے دوبارہ کہا، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں سحر چائے لے کر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ساس میرے بہت قریب بیٹھی ہیں، مگر اسے ذرا بھی برا نہ لگا۔ وہ بھی پاس ہی بیٹھ گئی، چائے میز پر رکھی اور خود پینے لگی۔ بولی، واہ، ساس اور داماد میں تو خوب گپ شپ ہو رہی ہے۔ میں نے سحر سے پوچھا، سحر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سحر ہنس کر بولی، ارے کوئی نئی بات نہیں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک کے ساتھ ایک مفت۔ یہ سن کر میں بالکل حیران رہ گیا اور کہا، نہیں، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا، میں صرف تمہارا ہی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ سحر بولی، امی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم دونوں میں پہلے سے بہت اچھی سمجھ بوجھ ہے۔ تم تو جانتے ہو بابا کتنے عرصے سے دبئی میں ہے، ہم ماں بیٹی پہلے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتی رہی ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نیا پیار نہیں۔ ہم نے ایسی بہت سی فلمیں دیکھی ہیں جن میں ساس اور بیٹی دونوں مل کر شوہر کے ساتھ وقت گزارتی ہیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج امی جو چاہیں گی تمہیں کرنا پڑے گا۔ آج بھول جاؤ کہ یہ میری ماں ہے، یہ صرف ہماری دوست ہے۔ میں کانپنے لگا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سحر بولی، ٹھیک ہے، پھر میں شور مچا دوں گی کہ تم نے امی کے ساتھ زبردستی کی ہے، پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کا اندازہ ہے نا۔ میں نے کہا، سحر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اپنی ساس کے ساتھ بھلا کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ساس بولی، جو بھی ہے اب میں تمہیں بتا رہی ہوں، آج تم نے مجھے مکمل سکون نہ دیا اور میرے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلا تو بہت برا ہوگا۔ میری بیٹی سحر بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی اور ہم طلاق لے لیں گی۔ پھر چائے کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک گولی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بولی، یہ دوا ہے، اس سے تم خوب کھیل سکو گے اور تمہیں بہت مزہ آئے گا، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ سکون ملے گا۔ میں بہت حیران تھا مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ آج خوب لطف اٹھاؤں گا۔ گزشتہ رات تو صرف سحر کے ساتھ گزری تھی، آج کچھ الگ ہونے والا تھا۔ گولی کھاتے ہی مجھے لگا کہ جسم میں بلا کی طاقت بھر گئی ہے اور میں مکمل طور پر تیار ہو چکا ہوں۔ شام ہوئی، سب نے اچھا کھانا کھایا، پھر ہم تینوں ایک ہی بڑے بستر پر چلے گئے۔ سحر نے ساس سے کہا، امی میں تو سہاگ رات میں خوب کھیل چکی ہوں، آج آپ کا حق ہے، پہلا نمبر اب آپ کا ہے۔ ساس ہنس پڑی، واہ میری بیٹی، تم تو بہت اچھی دوست ہو جو میرا حق مجھے دے رہی ہو۔ سحر بولی، نہیں امی، میں تو پاس بیٹھ کر دیکھوں گی تم دونوں کھیلو۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا مگر اب میں اپنے قابو میں نہیں تھا۔ ساس میرے ساتھ خوب کھیلیں، انہیں بہت تجربہ تھا، مجھے بے پناہ سکون اور راحت مل رہی تھی جیسا میں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد سحر بھی شامل ہو گئی۔ گولی کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا،
मगर इन दोनों को बेइंतहा मज़ा आ रहा था। फिर सास ने कहा, अब तुम बैठ जाओ, मैं खुद खेलूंगी। सहर ने भी अपना खेल शुरू कर दिया। मेरा बुरा हाल हो रहा था, मगर गोली के असर की वजह से मुझे थकन का एहसास ही नहीं हो रहा था। पूरी रात इन दोनों ने मेरे साथ खूब वक्त गुजारा, रोमांस किया और मोहब्बत भरी बातें की। सुबह तक मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुका था। बदन में ज़रा सी भी सकत बाकी नहीं बची थी। मैं चलने के काबिल भी नहीं रहा था। जिस्म में अजीब सी नकाहत और कमज़ोरी थी। सास और सहर मुझे अस्पताल छोड़ आईं। वहाँ सास बोली, अब तो मेरी बेटी को मुतमईन करने के काबिल नहीं रहे, अब तुम उसे तलाक दे दो। मैं रोते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मगर चंद ही दिनों में उन्होंने मुझसे तलाक ले ली। सहर मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई, मगर वो तूफ़ानी रात में आज तक नहीं भूल सका। मेरी ज़िंदगी में आने वाले इस अजीब तूफ़ान ने मुझे मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया था। इस वाक़े के बाद मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और सच्ची तौबा कर ली, क्योंकि मुझे इन जैसे लोगों से बचकर दूर रहना था। मैं अपने कमरे में चली गई और रात होने का इंतज़ार करने लगी। मैं अपने कमरे में फिर वही नावल लेकर बैठ गई। मैं सोच में गुम थी कि कमरे में बैठी नावल पढ़ रही थी कि आलिया कमरे में आई और कहने लगी, आपकी अम्मी बहुत गुस्सा कर रही हैं, कह रही हैं आज उसे पता नहीं क्या हो गया है जो बार बार कमरे में बैठी रहती है। मेरा तो आज का काम भी नहीं हुआ, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया है। तो मैंने आलिया से कहा कि जाकर अम्मी से कह दो कि मैं अभी आती हूँ। जब आलिया चली गई तो मैंने नावल एक तरफ रखा और मैं भी बाहर आ गई। अम्मी ने मुझे देखा तो गुस्सा करने लगी कि आज तुम्हें क्या हो गया है जो कब से कमरे में ही हो। तो मैंने अम्मी से कुछ नहीं कहा और उनके काम में हाथ बटाने लगी। रात का खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अम्मी और अबू के सोने का इंतज़ार कर रही थी। जब अम्मी और अबू अपने कमरे में सोने चले गए और आलिया भी सो गई तो मैं चुपचाप उठी और फारूक के कमरे में जाने लगी। मैं फारूक के कमरे के पास गई तो फारूक का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो फारूक की पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो मोबाइल में वही तस्वीर देख रहा था और फारूक का हाल बेहाल हुआ जा रहा था। फारूक को इस तरह से देखकर मेरे भी पसीने छूटने लगे। मैं जल्दी से दरवाजे से हट गई और अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन मेरे पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। मेरा दिल भी मचला जा रहा था। मेरे कदम अपने आप फारूक के कमरे की तरफ जाना चाहते थे। मैं रुकी और फिर से भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। मैं दरवाजे के पास पहुंचकर देखा तो भाई फिर से वही कर रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, भाई क्या तुम जाग रहे हो? मेरी आवाज़ सुनकर भाई थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से मोबाइल से वो फिल्म हटाई और अपने आप को सीधा किया और फिर बोला, आप आ जाएं। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो भाई बिस्तर पर बैठा था। अब भी उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किस हाल में था। मैं जाकर भाई के सामने बैठ गई। भाई नज़रें झुकाए बैठा था। मेरी हालत भी शायद भाई से छुपी नहीं थी। मैंने दबी हुई आवाज़ से भाई से पूछा, भाई क्या हुआ है? इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? तो भाई कुछ नहीं बोला। मैंने भाई के हाथ पर हाथ रखा और फिर कहने लगी, भाई तुम मुझे बता सकते हो जो भी तुम्हारी परेशानी हो। तो भाई कहने लगा, आपी मेरी परेशानी आपसे छुपी नहीं है। आप जानती हैं कि मुझे क्या परेशानी है और मैं भी जानता हूँ कि आप क्या चाहती हैं। मैं जब से कॉलेज से आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि आपका क्या हाल हुआ जा रहा है। तो मैंने भाई से कहा कि चाहती तो मैं भी वही हूँ, लेकिन डर लगता है। तो भाई कहने लगा कि डर कैसा? अबू अम्मी तो अपने कमरे में सो रहे हैं और आलिया भी सो गई है। हम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भाई के बिस्तर में लहाफ ओढ़कर लेट गई और भाई भी मेरे पास आकर लेट गया। फिर भाई मेरे कपड़े हटाने लगा। मैंने भाई से मना किया कि कपड़े मत हटाओ, तो भाई कहने लगा कि कपड़े नहीं हटाऊंगा तो बात नहीं होगी। भाई ने जुर्रत की और मेरे साथ वही काम करने लगा जो नावल में लिखा था। मैं पहली बार किसी के इतना करीब गई थी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने भाई से मना किया कि भाई रहने दो, मत करो, मुझे कुछ नहीं करवाना है। भाई कहने लगा कि अभी पहले पहले थोड़ा अजीब होगा, फिर मज़ा आने लगेगा। भाई ने अपना काम पूरा कर लिया। जब भाई फारिग होकर हटा तो मैं अपने कपड़े ठीक करने के लिए उठी तो मैंने देखा कि बिस्तर की चादर ख़राब हो चुकी थी। मैंने भाई से कहा कि भाई ये चादर का क्या करें अब? तो भाई कहने लगा, तुम इसी वक्त ले जाकर इसे धो दो, वरना सुबह अम्मी ने देख लिया तो काम ख़राब हो जाएगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था ये काम करने को, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा बदन दर्द से टूट रहा था, लेकिन अम्मी के डर से मैंने हिम्मत की। चादर उतारी, वॉशरूम में ले जाकर रोने लगी। मैंने चादर धोकर वॉशिंग मशीन में सुखाकर फिर से बिस्तर पर बिछा दी और अपने कमरे में सोने चली गई। मैं अपने कमरे में गई तो आलिया जाग रही थी। आलिया मुझसे पूछने लगी कि आपी आप इतनी रात को कहाँ गई थी? मैंने आलिया से कहा कि कहीं नहीं गई थी, मैं तो वॉशरूम गई थी। तो आलिया मुझसे पूछने लगी कि आपी आप ठीक हैं? तो मैंने कहा हाँ ठीक हूँ,
बस थोड़ा दर्द है, सुबह तक वो भी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने आलिया से कहा, आलिया तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। और मैं भी बिस्तर पर लेट गई और वही सब सोचने लगी कि आज भाई के साथ मुझे कितना सुकून मिला है, और सोचने लगी कि क्या ऐसा मौका और कब मिलेगा। और यही सब सोचते सोचते पता नहीं मैं कब सो गई। सुबह सबसे पहले मैं भाई के कमरे में गई। भाई को इसी हालत में सोता देखकर भाई का पूरा बदन एकदम दूध जैसा सफ़ेद लग रहा था। भाई की तरफ से मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल चुका था। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी और अपने हाथों से उसके गाल भी सहलाने लगी। भाई इतना बेखबर था कि उसे होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। मैंने भाई का हाथ हिलाकर उसे जगाना शुरू किया। भाई उठा तो मुझे देखकर कहने लगा, आपी यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हें जगाने आई थी, कॉलेज नहीं जाना, देर हो रही है। तो भाई कहने लगा, आपी जाना तो है कॉलेज, लेकिन मेरे बदन में बहुत दर्द हो रही है। मैंने पहली बार रात में जो आपके साथ किया था शायद इसीलिए। ये कहते हुए भाई ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगा, आपी क्या आपको कुछ नहीं हुआ? तो मैंने कहा, भाई मेरा तो आपसे भी ज़्यादा बुरा हाल था, बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने दर्द की दवाई खाई और फिर जाकर नहा लिया, तब जाकर थोड़ा आराम मिला। तुम भी उठो, जल्दी से नहा लो और नाश्ता करके खा लो। तो भाई कहने लगा, आप ही मुझे बिल्कुल नहाना नहीं है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी सुबह मैं नहीं नहा सकता। तो मैंने कहा कि तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। तो भाई कहने लगा, ठीक है आप ही, मैं नहा लेता हूँ, लेकिन मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा, आप अम्मी को समझा देना। तो मैंने कहा, ठीक है, लेटे रहो, मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अगर तुम्हारी छुट्टी रहेगी तो कोई मसला नहीं, जब तुम्हारा दिल करे तब उठ जाना। तो भाई फिर से सो गया। तो मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी और अम्मी अबू अभी उठे नहीं थे, और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि सारी रात मैं बदन दर्द के मारे सो नहीं पाई थी। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो सो गई, क्योंकि दवा खाने के और नहाने के बाद मुझे आराम मिल गया था। थोड़ी ही देर हुई थी कि अम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, अभी तक सो रही हो नाहिल? तुमने अभी तक फारूक को जगाया नहीं, उसे कॉलेज जाना था। तो मैंने कहा, अम्मी फारूक को जगाने गई थी, लेकिन वो कह रहा था कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगा। इंसान की जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली नजर आते हैं, लेकिन उनके नताइज इतने भयानक निकलते हैं कि पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ये कहानी भी हूस, धोखे और मुकाफाती अमल की एक ऐसी ही दास्तान है, जहां एक शख्स ने अपनी आरजी खुशी और जुनून की खातिर एक मासूम जिंदगी को रौंद डाला, मगर उसे खबर न थी कि कुदरत का इंसाफ खामोश लेकिन बहुत बेरहम होता है। मेरा नाम शाहवीज है। मैं शहर की रंगीनियों में पल्ला बढ़ा। एक ऐसा नौजवान था जिसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ ऐश व अशरत, पैसा और ताकत था। मेरे गांव में मेरे बूढ़े वालिदैन मुझे एक इंतहाई शरीफ और फरमानबरदार बेटा समझते थे, लेकिन उन्हें खबर न थी कि शहर में उनका बेटा किस अंधेरी दुनिया का बादशाह है। मैं शहर का एक जाना माना स्मगलर था। पुलिस से लेकर बड़े बड़े सियासतदानों तक सब मेरी मिट्टी में थे। मेरे इशारों पर शहर की नब्ज चलती थी और मेरे नाम से लोग कांपते थे। मैंने अपनी जिंदगी के 2 रख बना रखे थे। एक रख वो जो गांव में मेरे वालिदैन के सामने होता था, जहां मैं सिर झुकाकर चलने वाला फर्मा बरदार बेटा था, और दूसरा रख वो जहां मैं शहर का बेताज बादशाह था। मेरी जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि अचानक मेरे वालिदैन ने मुझे जज्बाती तौर पर बलिकमेल करके गांव बुला लिया। वहां पहुंचकर मुझ पर यह बम गराया गया कि मेरा निकाह मेरे मरहूम चचा की बेटी ज़ैनब से तय कर दिया गया है। मुझे ये सुनकर शदीद धचका लगा। ज़ैनब मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी, सानोला रंग, तालीम से बिल्कुल पूरी और गांव के सीधे सादे माहौल में पली बढ़ी एक आम सी लड़की। मेरे मायार और मेरी रंगीन जिंदगी के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन मेरे वालिद की गरती हुई सेहत और माँ के आंसुओं के आगे मुझे हथियार डालने पड़े। निकाह हो गया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बोझल रात थी। सजा हुआ कमरा मुझे किसी कैद खाने की तरह लग रहा था। ज़ैनब घूंघट निकाले बस्तर पर बैठी थी। मैंने उसे देखा तो मुझे शदीद कराहियत महसूस हुई। इसके हाथों की खिरदरी जल्द, उसका सानूला रंग और उसका देहाती अंदाज मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने उससे कोई बात नहीं की, बस दौर खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पीता रहा। मुझे उस पर तरस नहीं आया, बल्कि गुस्सा आया कि उसकी वजह से मैं इस बंधन में बंध गया हूँ। सुबह होते ही मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। ज़ैनब, जो शायद सारी रात मेरे एक लफ्ज़ की मंतज़र थी, मेरी तैयारी देखकर घबरा गई। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, अभी तो आप आए थे, इतना जल्दी वापस जा रहे हैं? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। मैंने उसकी तरफ हक़ारत से देखा और जहरीले लहजे में कहा, मुझे यहाँ एक पल भी सुकून नहीं है। तुम जैसी अनपढ़ और जाहिल औरत के साथ रहना तो दौर, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने से भी वहशत होती है। मैं अपने वालिद की इज्जत की खातिर चुप रहा, लेकिन हकीकत यह है कि तुम मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। मेरे अल्फाज निश्तर की तरह उसके दिल में उतर गए होंगे, क्योंकि वो एकदम साकत हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे।
लेकिन मैंने मड़कर भी नहीं देखा। बाहर मेरे वालिद मुझे रोकने आए। उन्हें लगा शायद काम की ज्यादती मुझे ले जा रही है। मैंने उनके सामने फिर से वही शरीफ बेटे का मासिक पहन लिया और झूठ बोला कि शहर में कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा जाना जरूरी है। वो बेचारे मुझे दुआएं देते हुए रुखसत करने लगे। मैं जब घर की दहलीज पार कर रहा था तो मैंने कनखियों से देखा ज़ैनब बावर्ची खाने के दरवाजे की ओर से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में जो वीरानी थी, इस वक्त मुझे उसका एहसास न हुआ, क्योंकि मेरे सिर पर शहर की आज़ादी का भूत सवार था। शहर वापस आते ही मैंने सुख का सांस लिया। यहाँ की खुली फजा, मेरे बॉडीगार्ड्स, मेरी लग्जरी गाड़ियां और मेरी ताकत, यही तो मेरी असल दुनिया थी। गांव का वो घटनज़दा माहौल मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न था। मैं अपनी पुरानी रोश पर वापस आ गया। मेरा एक मशगला ये भी था कि मैं भैंस बदलकर आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कॉलेज की बसों में सफ़र करता और ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों को तलाश करता जो गुर्बत के मारे हों और अमीर बनने के ख्वाब देखते हों। मैं उन्हें अपने जाल में फंसाकर अपने गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन मैं कॉलेज की बस में सफ़र कर रहा था कि मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम मायरा था। वो बस की सेट के पास खड़ी थी। उसके कपड़े सादा थे और जूते घुसे हुए थे जो उसकी गुर्बत की कहानी सुना रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी अना और गुरूर था। वो गुर्बत में भी एक शहजादी लग रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने मुझे पहली नज़र में ही अपनी तरफ खींच लिया। ये मेरा नया शिकार थी। मैंने सोचा कि इस जैसी ज़रूरतमंद लड़की को फंसाना बाएं हाथ का खेल होगा। मैंने अपनी सेट उसके लिए छोड़ दी और उससे बात करने की कोशिश की। वो मेहतात थी, लेकिन मैं जानता था कि जाल कैसे फेंका जाता है। मैंने उसकी जासूसी शुरू करवा दी। मुझे पता चला कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की अकलौती औलाद है और 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहती है। मैं उसे अपने रास्ते पर लाने के मंसूबे बना रहा था कि अचानक वो गायब हो गई। कई दिन तक वो बस में नजर नहीं आई। मुझे बेचैनी होने लगी। तहकीक करने पर पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है और वो कॉलेज छोड़ चुकी है। इस खबर ने मुझ पर बिजली गिरा दी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे मैं सिर्फ एक शिकार समझ रहा था, वो मेरे दिल में घर कर चुकी है। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, एक जुनूनी और पागल कर देने वाली मोहब्बत। मैं किसी भी कीमत पर उसे किसी और का होते नहीं देख सकता था। जिस दिन उसका निकाह था, मैंने अपने कारंदों के जरिए उसे ईन शादी के वक्त अगवा करवा लिया। मेरा मकसद उसकी इज्जत लौटना नहीं था, बल्कि इस रिश्ते को तोड़ना था। मैंने उसे अपने फार्म हाउस पर रखा, उसे हर तरह की सहूलत दी और इस बात का ख्याल रखा कि उसे कोई मैली आंख से भी न देख सके। एक दिन और एक रात उसे अपनी तहवील में रखने के बाद मैंने उसे बहफाजत उसके घर के करीब छोड़ दिया। वो जैसी पाक दामन आई थी वैसी ही वापस गई। लेकिन हमारा माशरा और इसके तंग नज़र लोग हकीकत को कहाँ मानते हैं। वही हुआ जो मैं चाहता था। मायरा के मंगेतर और ससुराल वालों ने ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि जो लड़की एक रात घर से गायब रही हो, हम उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकते। मायरा के दामन पर बदकिरदारी का दाग लग चुका था, हालांकि वो बेकसूर थी। इस वाक़ये के बाद मायरा और उसका खानदान टूट फूट का शिकार हो गया। यही मेरा मौका था। मैंने एक हमदर्द और मसीहा के रूप में उनकी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री दी। मैंने मायरा के वालिद की माली मदद शुरू कर दी, उनके घर राशन डलवाया और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा रहा। पैसा पानी की तरह बहाया। आहिस्ता आहिस्ता मायरा का रवैया भी नर्म पड़ने लगा। वो जानती थी कि मैं वही शख्स हूं जो बस में मिलता था, लेकिन वो मेरे एहसानात तले दबती चली गई। एक दिन वो मेरे सामने फट पड़ी और रोते हुए अपनी बदकिस्मती का रोना रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि दुनिया की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी कदर करता हूं। हम अक्सर मिलने लगे। मैं उसे महंगे होटलों में ले जाता, उसे तोहफे देता। वो मेरी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। आखिरकार मैंने उसके वालिद से उसका हाथ मांग लिया। वो तो जैसे उसी इंतज़ार में थे, फौरन राजी हो गए। लेकिन मायरा ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, शाहवीज़, मैं जानती हूं कि गांव में तुम्हारी एक बीवी है। जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे सौकन गवारा नहीं है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। मेरे वालिद इस सदमे से मर जाएंगे। वो कुछ देर सोचती रही और फिर उसकी आंखों में एक सर्द चमक भरी। उसने कहा, अगर तलाक नहीं दे सकते तो फिर उसे रास्ते से हटा दो। कुछ ऐसा करो कि वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। उसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए ठिठका, लेकिन उसकी मोहब्बत का निशा मुझ पर इतना गालिब था
कि मुझे सही और गलत की तमीज़ भूल गई। मैंने फैसला कर लिया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव रवाना हो गया। मेरे वालिदीन और ज़ैनब मुझे देखकर बहुत खुश हुए। ज़ैनब की आंखों में एक उम्मीद जागी कि शायद मेरा दिल पिसीज गया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं उसका मसीहा नहीं बल्कि उसकी मौत बनकर आया हूँ। गाँव में रहते हुए मैंने ज़ैनब के साथ अपना रवैया मज़ीद सख्त कर लिया। मैं उसे ज़हनी अजियत देता, बात बात पर टोकता, लेकिन वो उफ तक न करती। मेरी नज़रें हर वक्त मायरा के वादे पर थीं कि जैसे ही ये कांटा निकलेगा हम एक हो जाएंगे। मायरा से मेरी फ़ोन पर बात होती रहती थी। वो रोज़ मुझे अक्साती के काम कब तमाम करोगे। एक मनहूस शाम मायरा ने मुझे मशूरा दिया कि ज़ैनब को जहर दे दो। मेरा ज़मीर मर चुका था। मैं बाज़ार गया, वहाँ से खेतों में इस्तेमाल होने वाला जहरीला केमिकल ख़रीदा और उसे दूध के गिलास में मिला दिया। रात के वक्त में कमरे में गया। ज़ैनब जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। मैंने मुखौटा पहना और नरम लहजे में कहा, ज़ैनब, ये दूध पी लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मेरी तरफ से पहली बार मोहब्बत की इस पेशकश पर इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने कांपते हाथों से गिलास थामा। मैंने कहा, पी लो, मैं चाहता हूं आज हम पुरानी बातें भूल जाएं। इस मासूम ने मुझ पर अंधा एतमाद किया और वो जहर भरा दूध पी गई। मुझे यकीन था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। मैं वहां रुकना नहीं चाहता था। मैंने फौरन कोई बहाना बनाया और घर से निकल खड़ा हुआ। मेरे पीछे मेरी बीवी मौत और हयात की कशमकश में थी और मैं खुशी शहर की तरफ भाग रहा था। मेरा दिल मायरा की जीत की खुशी में झूम रहा था। मैंने मायरा को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूं। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। शहर पहुंचकर मैं सीधा मायरा के घर गया। मेरे पास उसके घर की डुप्लीकेट चाबी थी। मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने मायरा को आवाज़ दी। वो किचन से बाहर निकली। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली, आ गए तुम, काम हो गया? मैंने फातिहाना अंदाज में कहा, हाँ, हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म कर दिया। अब हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसने कहा, आज तो जश्न का दिन है, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाती हूँ। वो अंदर गई और मिठाई का डब्बा ले आई। उसने अपने हाथों से मुझे मिठाई खिलाई। मैं उसकी मोहब्बत में सरशार आंखें बंद किए उस मिठाई का जायका महसूस कर रहा था। मिठाई खिलाकर वो मुस्कुराते हुए दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर गुजरी तो मेरे पेट में हल्की सी मुरूड़ उठी। मैंने सोचा शायद थकावट है, लेकिन दर्द बढ़ता गया। मायरा वापस नहीं आई। मैं लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो गई थी। दरवाज़ा नीमवा था। मैंने अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहां मायरा अकेली नहीं थी, वहां एक और मर्द बैठा था। गौर से देखा तो वो अहमर था, मायरा का वही मनगीतर जिससे इसका रिश्ता टूटा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हंस रहे थे। मायरा की आवाज़ मेरे कानों में पगला सीसा बनकर उतरी। वो कह रही थी, अहमर, तुम फिक्र ना करो, मैंने अपना बदला ले लिया है। इस बेवकूफ़ शाहवेज़ को क्या लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे अगवा करवाने वाला कौन था। मुझे तो इसी दिन पता चल गया था। मैंने बस ड्रामा किया, उसे अपने जाल में फंसाया। आज मैंने उसे मिठाई में वही जहर मिलाकर दे दिया है जो उसने अपनी बीवी को दिया। अब वो मरेगा और तड़प तड़प कर मरेगा। अहमर हंस रहा था। तुमने कमाल कर दिया मायरा। वो समझ रहा था कि पैसे के जोर पर तुम्हें खरीद लेगा। अब देखना वो कैसे कुत्ते की मौत मरता है। हम दोनों की मोहब्बत के बीच आने वाले का यही अंजाम होना था। मेरा दिमाग चकरा गया। दुनिया मेरी नज़रों के सामने धंधलाने लगी। जहर मेरे जिस्म में फैल चुका था। जिसे मैंने अपनी जिंदगी समझा वही मेरी कातिल निकली। मकाफाती अमल मेरे सामने खड़ा कहकाए लगा रहा था। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, उसे जहर दिया और बदले में मुझे मोहब्बत के नाम पर जहर मिला। मैं वहां से उल्टे कदमों भागा, लेकिन जिस्म साथ छोड़ रहा था। मैं गाड़ी तक पहुंचा ही था कि मेरा फ़ोन बजा। ये मेरी माँ का फ़ोन था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। माँ की रोती हुई आवाज़ आई, बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। ज़ैनब आखिरी सांसें ले रही है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, लेकिन वो मरते हुए भी तुम्हारा नाम ले रही है।
वो कह रही है कि शाहवीज को बुला दें। मैं उनसे मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो। बेटा, वो तुम्हें मुआफ़ करके जाना चाहती है। मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक तरफ वो औरत थी जिसे मैंने जहर दिया, लेकिन वो मरते हुए भी मेरी माफ़ी और मेरी दीद की तलबगार थी, और दूसरी तरफ वो औरत थी जिसकी खातिर मैंने ये गुनाह किया और उसने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे अपनी रगों में जहर फैलता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी सांसें अखड़ रही थीं। मैं सड़क के किनारे गिर गया। मेरे पास दौलत थी, ताकत थी, बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन मौत के इस फरिश्ते को रोकने वाला कोई नहीं था। मुझे ज़ैनब का मासूम चेहरा याद आ रहा था और मायरा की वो शैतानी हंसी। मैं चीखना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही घट कर रह गई। मैंने अपनी जन्नत अपने हाथों से उजाड़ दी थी और अब जहन्नम मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। ये कुदरत का इंसाफ था, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और आखिरी ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि ज़ैनब जीत गई और मैं सब कुछ हार गया। मेरा नाम नबीला है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरी एज 27 साल है और मैं बहुत ही क्यूट और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह हुसैन है। मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल मोटे और भरे भरे हैं और मेरे होंठ रस भरे रसीले हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि मैं इस वक्त तकरीबन 16 साल की थी जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी, जिस वजह से इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी से रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद BA कर चुका था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मा जान से कहा कि वो शहजाद से बात करें कि वो फ़ारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी ज़ाय नहीं होगा। अम्मा इसी दिन शहजाद से बात कर आई और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। इस दिन ने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। तकरीबन 7:30 बजे होंगे जब शहजाद हमारे घर आए। शहजाद की उम्र इस वक्त 25 साल के करीब थी और काफ़ी वजीहा और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। उनका कद 6 फुट के करीब, जबकि जिस्म मजबूत और तवाना था। क्लीन शेव के साथ सांवला रंग क़यामत खेज था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है। मैंने भी सर हिलाते हुए कहा, जी वेरी गुड। ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज़्यादा कमज़ोर समझती हो? शहजाद ने मेरी किताब उठाकर उसके वरक उलटते हुए किताब पर ही नज़रें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी जेजे कर रही थी। शहजाद ने किताब मेज़ पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और जेजेकित रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुमको जो कुछ पढ़ाऊंगा वो तुमको ज़हन नशीन भी करा सकूंगा। लिहाजा डरने जेजेकिनी की ज़रूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे इसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैं खुद को थोड़ा रिलैक्स जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली। इस दिन पढ़ाई तो कोई ख़ास न हुई, अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी जेजेका दूर कर दी। मैं अब काफ़ी रिलैक्स भी थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचलपिन बेदार हो चुका था। शहजाद ने थोड़ी सी मैथ की मश्क कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहकर घर के लिए उठे। अम्मा ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाएं। शहजाद भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गुपशप के बाद शहजाद कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त के खासे पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर ख़त्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाजिब नज़र तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद की गिरविदा हो चुकी थी और उनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ी भी हो चुकी थी। इस दिन शहजाद मुझे मैथ की मश्क करा रहे थे। जब अम्मा चाय ले आई, उन्होंने चाय मेज़ पर रखी और बोली कि चाय पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मश्क ख़त्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद को देना चाही तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय शहजाद के ऊपर गिर गई।
जिससे उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो ओसान खता हो गए। दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार शहजाद को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से खुश्क करने की कोशिश कर रही थी। अब जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस जुमले को बिल्कुल भी ना समझी और इसी तरह तौलिया से उनकी शर्ट को खुश्क करने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें खुश्क करने में लगी रहती, पर शहजाद ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से उठाकर खड़ा करते हुए बोले, बस करो बबली। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज फाइन, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी, इसीलिए जब मैंने उन्हें इस शफकत से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे यूं रोते देखा तो अपनी बाहों में भरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर बोसा देते हुए बोला, अरे पगली, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिराई है, ये तो हादसाती ऐसे हुआ। उनके ढारस बंधाने पर मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूं कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूं। शहजाद भी शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए बोला, बबली, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं कि तुम ऐसे हादसात रोज किया करो। वो हंस रहे थे और उनकी ये मानवी हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसते देखकर मुस्करा दी। शहजाद ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाहा तो शहजाद ने कहा, आज का काम खत्म कल देखेंगे, मैं चलता हूं क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। शहजाद अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता न चला। मैं तो इस दिन जब मैं बेड पर थी तो ये वाकया बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था और ये सब इस वक्त तो मेरे लिए बेमानी थे, लेकिन अब उन वाकयात को सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता ही ना चला कि कब नींद ने आ लिया और मैं नींद की गहरी वादी में गौते खाने लगी। इस रात मैंने बारहा ख्वाब में शहजाद को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ राज और नियाज की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में, तो कभी ठाठे मारते समंदर की लहरों से खेल रहे होते। गरज इस रात मैंने और शहजाद ने मिलकर दुनिया जहान की सैर की। मैं इस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर हर मंजर मेरे जहन में नक्श था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं उन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे इल्म नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत पुरलुत्फ था। दूसरी शाम जब शहजाद हमारे घर पहुंचे तो मैं इसी वक्त नहाकर निकली थी। मेरे बाल गीले थे और उनसे अभी तक पानी टपक रहा था। शहजाद की बार बार उठती हुई नज़र को मैं बखूबी नोटिस कर सकती थी। मैं तो शहजाद को ख्वाबों में बसा चुकी थी, लेकिन यहाँ लगता था कि शहजाद के मन में भी कोई बात चल रही है। दौरान सटडी मुझे आज मेरी दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार किया है, लेकिन इतना ज़रूर था कि शहजाद के ख्यालात मुझे मदहोश कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसी फीलिंग्स पहले कभी नहीं हुई थी। यूं ही जब शहजाद मुझे मैथ के एक सवाल की मश्क करा रहे थे तो मैं उनके साथ बहुत करीब हो गई थी। मैंने ऐसा कोई इरादतना नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना इत्तेफाकना था। आखिर 9 बजे और शहजाद घर जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेट कर उठी तो उन्होंने करीब से गुजरते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा, बबली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो इस दौरान वो मुझसे दूर हिट चुके थे। उनके अल्फाज सारी रात मेरे कानों में बजते रहे। शायद ख्वातीन के मुताल्लिक सच कहा जाता है कि वो बहुत खुद पसंद होती हैं, इसीलिए उनकी तारीफ की जाए तो फूले नहीं समाती। अगले दिन भी शहजाद वक्त पर ही आ गए। अभी हमने सटडी स्टॉर्ट ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जलाकर ले आओ, तो शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा मोतियों से माला परोहनी है, ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं, थोड़ी ही देर में बिजली तो आ ही जाएगी। तो मैं भी उधर ही बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। शहजाद ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अगरचे शहजाद की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी पर असर शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं फौरी तवक्को नहीं कर रही थी।
कमरे में इस वक्त चूंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरों के तासुरात नहीं देख पा रहे थे। हकीकत कहूँ तो मुझे उनके हाथ अपने हाथ पर बहुत मज़ा दे रहा था, लेकिन कोई अंदरूनी खौफ था जो रोक रहा था। लेकिन अगर शहजाद की जगह कोई भी और होता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं इसका मुंह नोच लेती। लेकिन शहजाद के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हारी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ नहीं चाह रही थी जो हो रहा था। मुझे अजीब लगने लगा था, इसीलिए मैंने शहजाद के हाथ को छोड़ा और टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन मैं जैसे ही उठकर कदम बढ़ाने वाली थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं डगमगा गई। इसी लम्हे शहजाद ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी शायद। मैं जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागी। मुझे कुछ हाजत तो ना थी, अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे तो गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। मैं अभी टॉयलेट में ही थी कि बिजली आ गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो शहजाद वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा किया कि वो बताए बगैर ही चले गए। इसी वक्त अम्मा ड्राइंग रूम में आई तो उन्होंने बताया कि शहजाद कह रहा था कि इसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटें और अपने बेडरूम में चली आई। मेरी सोच का महवर बस शहजाद ही थे। इस रात भी मैं उन्हीं सोचों में गर्क सो गई। सुबह उठी तो शहजाद की ही याद में सारा दिन मसहूर होती रही। शाम होने से पहले ही मैं शाम का बेचैनी से इंतजार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि शहजाद आज कैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन वक्त होने के बावजूद वो नहीं आए। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरा इंतजार बस इंतजार ही रहा। वो 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने अम्मा से कहा कि खैर हो शहजाद, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। अम्मा ने कहा कोई और काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा नहीं अम्मा, कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वो अभी तक ठीक ना हुए हों। अब खाला को फ़ोन करके उनका पता तो कराए। अम्मा को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने खाला को फ़ोन लगाया। तब खाला ने बताया कि शहजाद तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। मुझे इल्म हुआ तो सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाऊं और उसका बुखार खुद पे ले लूं, लेकिन मैं इस वक्त क्या कर सकती थी। सुबह में अम्मा को साथ लेकर उनका पत्ता लेने खाला के घर गए तो देखा शहजाद वाकई बुखार की वजह से बिस्तर में पड़े थे। थोड़ी सी रस्मी बातचीत के बाद में इधर ही बैठ गई। खाला और अम्मा भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ हो गई। शहजाद ने एक बारगी हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हम खाला और अम्मा की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम खामोश बैठे थे जबकि खाला और अम्मा बातें कर रहे थे। बातों बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी थी जहां उनका जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन नहीं जा सकती। अम्मा पूछ रही थी क्यों नहीं जा सकती हो, तो खाला बोली जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा है और आपके भाई साहब खालू भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके कि उनके साथ चली जाती। अम्मा चूंकि खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वो किधर रहती हैं, इसलिए खाला से बोली तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर अम्मा और खाला शादी पर चली जाएं तो मुझे शहजाद से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने भी अम्मा की ताईद में कहा खाला अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो तब आप ज़रूर हो आएं। शहजाद की फिक्र ना करें, 2-3 घंटों तक हम उनकी तीमारदारी कर लेंगे। खाला और अम्मा दोनों को मैंने शादी में जाने पर आमादा कर लिया, अगरचे अम्मा जाना नहीं चाहती थी। उन दोनों के जाने के बाद में और शहजाद अब घर में अकेले थे। कोई 15 मिनट तक हम में कोई बात ना हुई। शहजाद वैसे ही आंखें मूंदे लेटे रहे। शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कोई बात शुरू करूंगी, लेकिन मैं तजब्जुब में रही कि बात शुरू कैसे करूं और कौन सी बात करूं। तन्हाई और खामोशी माहौल पर अजब परसरत थी। शहजाद ने मेरी तरफ करवट लेकर आंखें खोल दी। नबीला तुमने मुझे जला डाला। उनकी आवाज़ मेरी समातों से टकराई, उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर गड़ी थीं। तुम शायद समझ रही होगी कि मैं बुखार से तप रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आग जिसमें मैं जल रहा हूँ तुम्हारी ही प्यार में लगी हुई है। देखो जल रहा हूँ ना मैं। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने माथे पर लगा दिया। उनका माथा सच में अंगारे की तरह था। जी शहजाद, मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। शहजाद दीवानों की तरह मेरे हाथ को अपने चेहरे पर रख रहे थे, जैसे वो इस तरह सुकून पा रहे हो।
सुकून तो मुझे भी हासिल हो रहा था, मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी।